கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। நாம் ஆராதிக்கும் போது கர்த்தர் நமக்கு விடுதலை தருகிறார். हम जब आराधना करते हैं तो परमेश्वर हमें छुटकारा देता है। தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நாம் நேரா கடந்து செல்வோம். हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर प्रस्थान करेंगे। அவருடைய வார்த்தை மாறாதது. परमेश्वर का वचन जो है कभी नहीं बदलने वाला। வானமும் பூமியும் ஒழிந்து போனாலும் அவருடைய வார்த்தைகள் ஒருபோதும் மாறாதது. आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा परमेश्वर जो वचन है वो कभी नहीं टलेगा। கண்களை மூடி கர்த்தரை நோக்கி நாம் பார்ப்போம். आंखें बंद करके परमेश्वर को हम ध्यान करेंगे। கர்த்தர் நம்மோடு பேசும்படியாக. प्रभु परमेश्वर हमसे बातें करने के लिए। பரிசுத்தமுள்ள நல்ல பிதாவே, पवित्र पिता परमेश्वर, நாங்கள் உம்மை தேடி வந்திருக்கிறோம். हम आपका खोज में आए हैं। உம்முடைய சமூகத்திலே நாங்கள் கடந்து வந்திருக்கிறோம். आपका समूह में हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। நீர் எங்களோடு கூட பேசுவீராக. आप हमसे बातें कीजिए। உம்முடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. का नाम सिर्फ महिमा होने पर। இயேசு கிறிஸ்து மூலம் ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே. यीशु मसीहा के नाम से मानते हैं अच्छे पिता। ஆமென். आमीन। நீதிமொழிகள் 28ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனம் 20ஆம் வசனம். உத்தமனாய் நடக்கிறவன் ரட்சிக்கப்படுவான். जो सिराई का चाल चलता है वो उद्धार पाएगा। உண்மையுள்ள மனுஷன் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதங்களை பெறுவான். जो सच्चाई के साथ चलता है परमेश्वर का भय मानकर वो जो है आशीष को पाएगा। இன்றைக்கு உத்தமனாயும் உண்மையாயும் நடந்த ஒரு மனிதனை குறித்து நாம் தியானிக்க போகிறோம். आज हम लोग ध्यान करेंगे एक सच्चाई से उत्तमता के साथ चला वाला एक मनुष्य के बारे में हम ध्यान करेंगे। அவர் வேறு யாரும் அல்ல, காலேப் என்ற ஒரு மனிதன். वो और कोई नहीं, उस मनुष्य का नाम कालेब है। காலேப் என்றால் முழுமையாய் தேவனை தேடுகிற மனிதன். कालेब का मतलब है कि सच्चाई के साथ अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर का खोज करने वाला। மிகவும் தைரியமுள்ள ஒரு மனிதன். बहुत ही जो है शक्ति वाला मनुष्य था। மிகவும் obedient person. और बहुत ही आज्ञाकारी मनुष्य था। எனவேதான் அவருக்கு அந்த பெயர் காலேப் என்று வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. इसीलिए उस मनुष्य का नाम कालेब करके रखा गया। இன்றைக்கு ஆண்டவர் அப்படிப்பட்ட பயந்து கீழ்ப்படிந்து நடக்கிற மனிதனை கர்த்தர் தேடுகிறார். आज उसी प्रकार जो डर कर परमेश्वर का भय मानकर चलने वाला को ही परमेश्वर खोज रहे हैं। அப்படிப்பட்ட மனிதனுக்கு தான் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்வார்கள். उस प्रकार का मनुष्य ही अपने जीवन में परमेश्वर का आशीष पाएगा। இன்றைக்கு இந்த காலைவேளையில காலேப் பெற்றுக்கொண்ட ஆசீர்வாதத்தை போல நாமும் கூட பெற்றுக்கொள்ள நம்மை நாம் ஒப்பு கொடுப்போம். हम लोग जैसे कालेब ने परमेश्वर से आशीष पाया है उसी प्रकार हम भी आशीष पाने के लिए परमेश्वर को समर्पण करेंगे। மூன்று காரியங்களை காலேபின் வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம். 3 कार्य को जो है हम कालेब के जीवन से हम प्राप्त करेंगे। முதலாவதாக காலேப் a man of faith and perseverance. पहला पहल कालेब जो है एक जो है आज्ञाकारी विश्वसनीय एक मनुष्य था। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। இஸ்ரவேல் தேசத்திலிருந்து கானான் தேசத்தை வேவு பார்ப்பதற்காக 12 பேரை அனுப்பினார்கள். इजराइल देश से कैनान देश में जो है उस देश के बारे में समाचार लेने के लिए 12 जन को भेजा जा रहा है। வனாந்தரத்திலே சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். मरुस्थल में 12 लोग भी चल रहे हैं। அவர்கள் சென்றடைய வேண்டிய தேசம் பாலும் தேனும் ஓடுகிற கானான் தேசம் அருகாமையில் வந்துவிட்டது. और वो लोग जो देश में प्रवेश करने वाला देश है जो कैनान देश कहते हैं जहां पर दूध और महू बहता है वहां में एकदम नजदीक पहुंच गए। அந்த தேசம் எப்படி இருக்கிறது பார்த்து வருவதற்காக 12 பேர் அனுப்பப்படுகிறார்கள். उस देश में कैसे हालचाल है करके देखने के लिए ये 12 लोगों को भी भेजा गया है। அந்த 12 பேர்ல இருவர் யோசுவும் காலேபும் அந்த தேசத்தை நாம் சுதந்தரிக்க முடியும் என்று சொல்கிறார்கள். उस 12 लोगों में से जो है सिर्फ 2 जन कहते हैं कि वो देश को हम लोग परमेश्वर यहोवा की मदद से छुटकारा पा सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। அதில் ஒரு மனிதன் காலேப். उसमें ये दोनों में से एक मनुष्य ही कालेब है। அவர் உண்மையாய் தேவனை அறிந்திருந்த நிமித்தனாமா वो सच्चाई से परमेश्वर के लिए चलता था करके எனவே இந்த கானான் தேசத்தை நாம் சுதந்தரிக்க முடியும் என்று விசுவாசித்தார். और इसीलिए परमेश्वर का वो सच्चाई चलता करके इस कैनान देश को हम अपने हाथ में स्वतंत्र कर सकते हैं करके विश्वास किया। அந்த தேசத்தை சுதந்தரிப்பதற்கு அவருக்கு 60 வருடம் ஆகிவிட்டது. उस देश को कैनान देश को स्वतंत्र करने के लिए 60 वर्ष पूरे हो गए। 20 வருடம் எகிப்து தேசத்திலேயும் 20 साल जो है मिस्र देश में बंदी थे 40 வருடம் வனாந்தரத்திலேயும் और 40 वर्ष जो है मरुस्थल में थे। கடந்து வந்து அதன் பிறகாக அந்த கானான் தேசத்துக்குள்ளாக பிரவேசிக்கிறார்கள். और आने के बाद में जो है सब संपूर्ण करके कैनान देश में प्रवेश करते हैं। हालेलुया हालेलुया। கர்த்தருக்கு பிரியமான பிள்ளைகளே, परमेश्वर के प्रिय लोगों, அன்றைக்கு கானான் தேசம் அவர்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமான தேசம். उन दिनों में कैनान देश जो है उन लोगों के लिए आशीर्वाद का देश था। அதற்காக உண்மையாயும் பயபக்தியோடு கூட காத்திருந்தார் காலேப். उन लोग के उस कार्य के लिए जो है कालेब जो है बहुत ही भक्ति के साथ में परमेश्वर के लिए जो है इंतजार करता था। இன்றைக்கு நாம் சென்று கொண்டிருக்கிற நாம் அடைய போகிற அந்த தேசத்திற்காக आज हम लोग जो देश में जो अनंत में जाने के लिए जो इंतजार कर रहे हैं उसे पाना है जो हमें நமக்கும் விசுவாசம் பொறுமையும் வேண்டும். हमें भी विश्वास और धीरज और समाधान चाहिए। கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. प्रभु परमेश्वर में आशीष करे। காலேப் உண்மை
உண்மையாய் கர்த்தரை பின்பற்றினான். कालेब सच्चाई से परमेश्वर के पीछे चलता था. தேவன் காலேபை ஒரு குடும்பத்தை ஆசீர்வதித்தார். परमेश्वर ने कालेब और उसके संपूर्ण परिवार को आशीष किया. யோசுவா 14ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம் 11ஆம் வசனம் 12ஆம் வசனங்களை படிக்கும்போது योशुआ का जो है 14 अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे 10, 11 और 12. அந்த மூன்று வசனங்களை நாம் படிப்போம். योशुआ का 14 अध्याय का 10, 11 और 12 हम पढ़ेंगे. लिखा है 10वां अध्याय में देखेंगे, और सब देख जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था तब से 45 वर्ष हो चुके थे जिनमें इजराइली जंगल में घूमते फिरते रहे. उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है और अब मैं 50 वर्ष का हूँ. जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था उतना बल अभी तक मुझ में है. युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ्य थी उतने ही अब भी मुझ में है, मुझ में सामर्थ्य है. इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी. तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाकवंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं, परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश में से निकाल दूं. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. இதோ கர்த்தர் சொன்னபடியே देखिए परमेश्वर ने जैसे कहा था என்னை உயிரோடே காத்தார். मुझे जीवित रखा है. இஸ்ரவேலர் வனாந்தரத்தில் சஞ்சரிக்கையில் इजरायली लोग जब मरुस्थल में जो है परेशान हो रहे थे, கர்த்தர் அந்த வார்த்தையை மோசேயோடே சொல்லி परमेश्वर ने वो वचन को मूसा के साथ कहकर இப்போது 45 வருஷமாயிற்று. अभी 45 इयर्स हो गया है. இதோ இன்று நான் 85 வயதுள்ளவன். देखो मैं अब 85 उम्र का हो गया हूँ. மோசே என்னை அனுப்புகிற நாளில் मूसा ने जब मुझे भेजा எனக்கு இருந்த அந்த பலன் मुझ में जो सामर्थ्य थी पहले இந்நாள் வரைக்கும் எனக்கு இருக்கிறது. अब तक वही सामर्थ्य मुझ में बना है. யுத்தத்திற்கு போக்கும் வருத்தமாய் இருக்கிறதற்கு युद्ध में जाने आने के लिए அப்போது எனக்கு இருந்த பலன் उस समय जो मुझ में सामर्थ्य था இப்போதும் எனக்கு இருக்கிறது. उतनी ही अब भी मुझ में है.